اجماع اس صورت میں خبر واحد کے مصادیق میں درج ہوتا ہے جب وہ اجماع حسی ہو۔ اگر وہ اجماع حدسی ہے، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور حدسی سے مراد یہ ہے کہ اجماع نقل کرنے والے نے اس اجماع کو خود پڑتال کر کے آگے بیان نہیں کیا، بلکہ اس اجماع کے انعقاد پر اس کے پاس کوئی دلیل تھی، دلیل کی بنیاد پر اس نے دعویٰ کر دیا کہ علماء اجماع رکھتے ہیں، تو یہ اجماع حدسی ہے۔ اور اجماع حدسی وہ خبر واحد کے مصادیق میں درج نہیں ہوتا، کیونکہ خبر واحد امام علیہ السلام کی رائے تک پہنچاتی ہے عن طریق الحس، کیونکہ اول راوی نے امام علیہ السلام کی رائے کو امام علیہ السلام سے لیا ہوتا ہے حس کے طریق سے، پھر آگے اس کو وہ نقل کرتا ہے، تو لہذا خبر واحد جو ہے وہ منقول حسی ہے۔ تو اب اگر اجماع حسی ہے تو پھر وہ خبر واحد کے زمرے میں آئے گا، وگرنہ نہیں آئے گا۔ یعنی راوی یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس یہ دلیل ہے امام علیہ السلام نے یہ کہا ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام سے سنا ہے یا انہوں نے کہا ہے اور میں نے ان سے یہ بات لی ہے۔ تو دعویٰ دلیل دینا کہ بھئی امام علیہ السلام نے یہ کہا ہے یہ اور بات ہے، اور امام علیہ السلام کے قول کو سن کے آگے بیان کرنا اور بات ہے۔ دونوں کا فرق محسوس کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو؟ اور اس کی مثال ہم نے اس دن دی تھی، وجود نار کی کوئی خبر دیتا ہے آپ کو، تو ایک بار یہ کہتا ہے کہ میں دیکھ کے آیا ہوں کہ وہاں آگ جل رہی ہے، یہ خبر بے وجود نار ہے عن طریق الحس، اور دوسری بار یہ ہے کہ اس نے آگ کو وہاں جا کے مشاہدہ نہیں کیا ہے، دھواں اٹھتا ہوا دیکھا ہے یا لوگوں کا شور سنا ہے اور اس نے خبر دیا ہے کہ یار پچھلی گلی میں آگ جل رہی ہے یا کسی کے گھر کو آگ لگ گئی ہے۔ تو اب یہ جو خبر دی ہے اس نے یہ عن طریق الحس نہیں عن طریق الحدث دے دی ہے، کیونکہ مخبر ان ہو کے وجود پر اس کے پاس عقلی دلیل ہے یا کوئی بھی قرینہ ہے، کوئی دلیل ہے جس کی بنا پہ اس نے مخبر ان ہو کے آگے خبر دے دی ہے۔ لہذا خبر جو ہوتی ہے وہ طریق حسی ہے امام علیہ السلام کی رائے کو نقل کرنے کا۔ جب خبر طریق حسی ہے تو اب اجماع اگر حسی ہے تو اس کے مصادیق میں درج ہوگا، اگر حسی نہیں ہے جسے آپ حدسی کہتے ہو حدسی ہے تو پھر وہ خبر واحد کے مصادیق میں درج نہیں ہوگا۔ اتنی بات کلیئر ہے؟ مصنف کہتا ہے یہ جو ہم نے پیچھے 3 قسمیں بنائی ہیں جن میں سے ہم نے 2 قسموں کو درج کیا ہے خبر واحد کے مصادیق کے در میں، اور جو تیسری قسم تھی کہ جس میں منقول عنہ الیہ شخص ملازمت کے یا سبب کے سبب ہونے کا وہ انکار کر دیتا ہے، تو تیسری صورت کو ہم نے کہا ہے کہ یہ خبر واحد کے مصادیق میں درج نہیں ہوتی۔ یہ تفصیل ہم اس صورت میں دے رہے ہیں جب آپ کو ناقل کو یا منقول الیہ کو اطمینان ہے کہ یہ اجماع جو نقل کیا جا رہا ہے یہ اجماع حسی ہے، اور اگر شک ہو جائے کہ یہ نقل ہونے والا اجماع حسی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ اجماع حدسی ہو، اس کے حدسی ہونے کا احتمال، حدسی ہونے کا شک پیدا ہو جائے، تو ایسی صورت میں پھر اس اجماع کو ہم حسی میں درج کریں گے یا حدسی میں درج کریں گے؟ تو مصنف کہتا ہے اس کو ہم حسی میں درج کریں گے۔ کیوں، کیا دلیل ہے بھائی آپ کے پاس؟ کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ مخبر جس وقت اکلا کے سامنے کوئی خبر دیتا ہے تو اکلا کو اگر شک ہو جائے کہ یہ مخبر جس خبر کو ہمیں بیان کر رہا ہے کہ اس نے پتہ نہیں یہ عن طریق الحس لے کر ہم کو خبر دے رہا ہے یا عن طریق الحدث لے کر ہم کو خبر دے رہا ہے، تو شک کی مورد میں یعنی حس اور حدث کے حوالے سے خبر میں شک ہو جائے تو وہ پڑتال نہیں کرتے، تفتیش نہیں کرتے، صرف مخبر کے ثقہ ہونے کو جو ہے وہ پڑتال کرتے ہیں۔ اگر وہ ان کی نظر میں ثقہ ہے تو اس کی بات پہ وہ عمل کرتے ہیں، ثقہ نہیں ہے تو عمل نہیں کرتے۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ خبر دینے والا مخبر کس طریق پر خبر لے کر دے رہا ہے، اگر اس کے طریق میں شک ہو جائے کہ یہ حس کے طریق پہ لے کے دے رہا ہے یا حدث کے طریق پہ، تو ایسی صورت میں اس کی پڑتال نہیں کرتے۔ تو اکلا کا پڑتال نہ کرنا یہ سیرت ہے عدم تفتیش پر،
اس عدم تفتیش والی سیرت کو ہم دلیل بنائیں گے اس اجماع کو جس کے بارے میں شک ہو جائے کہ ناقل نے اس کو نقل کیا ہے تو آیا یہ حصی ہے جس کو نقل کر رہا ہے یا حدسی ہے، تو ہم اس کے ناقل کے ثقہ ہونے کو دیکھ کے اس اجماع کو تسلیم کریں گے اور حصی ہی سمجھیں گے۔ صحیح، یعنی اب جو ہے وہ خود شخص پہ جو ہے وہ اعتماد کیا جائے گا، یعنی جیسے وہ خبر واحد والا جو ہے اگر ثقہ ہے تو بے شک اس نے حصی سے لیے یا حدسی سے لیے۔ دیکھیں اگر آپ کو پتہ ہے کہ حدسی سے لی ہے تو پھر آپ بالکل نہیں کر سکتے اس کو، اور اس کو آسان بناتا ہوں۔ ایک صورت یہ ہے کہ آپ کو اس اجماع کے حصی ہونے کا اطمینان ہے، دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کو اس کے حدسی ہونے کا اطمینان ہے، تیسری صورت یہ ہے کہ آپ کو شک ہے پتہ نہیں حصی ہے یا حدسی ہے۔ اگر حصی ہونے کا اطمینان ہے تو خبر واحد کے مصادیق میں درج ہوگا۔ صحیح، کیوں؟ اس لیے کہ خبر واحد جو ہے وہ حصی طریقہ ہے امام کی رائے تک پہنچنے کا، صحیح، اجماع حصی ہے تو اس کا مصداق قرار پائے گا۔ اور اگر آپ کو اطمینان ہے کہ یہ اجماع حدسی ہے تو ایسی صورت میں اس کا مصداق قرار نہیں پائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ آپ کو اجماع کے حصی اور حدسی ہونے کے حوالے سے شک ہو گیا، تو اس صورت میں آپ اس اجماع کو کہاں درج کریں گے، حصی میں یا حدسی میں؟ مصنف کہتے ہیں حصی میں درج کریں گے۔ جب حصی میں درج کریں گے تو حصی جو ہے آٹومیٹکلی کدھر درج ہے؟ خبر واحد کے زمرے میں درج ہے، تو یہ مشتبہ جس کی صورتحال مشتبہ ہو وہ اجماع خبر واحد کے اندر درج ہو جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ آپ اس مشتبہ کو اس حصی کے باب میں درج رکھ کر رہے ہیں، دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل سیرت الاقلاع ہے۔ اقلاع کی سیرت کس بات پہ؟ بھائی مخبر جس وقت خبر بیان کرتا ہے ان کے سامنے تو اقلاع اس کے ثقہ ہونے کی پڑتال کرتے ہیں، اس کے طریق کی پڑتال نہیں کرتے۔ بس ثقہ ہے تو اس کی بات قبول کرتے ہیں چاہے وہ کسی طریق سے لے کر آئے۔ تو ثقہ ہونے سے مزید اس کے طریق کے حوالے سے کہ یہ کس طریق پہ لے کے ہم کو خبر دے رہا ہے اس طریق کے حوالے سے خبر کی تفتیش نہیں کرتے۔ طریق سے مراد حدث اور حص ہے۔ ٹھیک، تو اب اگر شک ہو جائے کہ بھئی یہ مخبر کہاں سے لے کر خبر دے رہا ہے، ان طریق الحس لے کر دے رہا ہے خبر ہم کو یا ان طریق الحدث لے کر ہم کو یہ خبر دے رہا ہے، تو اس شک کی مورد میں وہ اس شک کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ اس شک پہ دھیان ہی نہیں دیتے، اس کی پڑتال ہی نہیں کرتے۔ مشک ہے تو بس ٹھیک ہے، اس کی بات پہ وہ عمل کرتے ہیں۔ تو جب یہ اقلاع کی سیرت موجود ہے کہ اگر خبر کے خبر کے حدث اور حس والے پہلو کے حوالے سے شک ہو جائے تو وہ اس کی پڑتال نہیں کرتے، بس راوی کے ثقہ ہونے کو کافی سمجھتے ہیں اور اس کو حصی ہی شمار کرتے ہیں، تو اس سیرت کو ہم دلیل بنائیں گے اس مشتبہ صورتحال والے اجماع کو کنفرم کرنے کے لیے کہ اس کو کس باب میں درج کرنا ہے۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ یعنی اگر اس کا ناقل جو ہے وہ اجماع کا ناقل جو ہے وہ ثقہ ہے تو پھر ہم جو ہے وہ اس کو اس کے اجماع کو قبول تب کریں گے جب وہ ناقل ثقہ ہے۔ باقی یہ کہ وہ حصی ہے نقل کر رہا ہے حدسی ہے، اگر ہمیں کنفرملی اس کا حدسی ہونا کنفرم ہے تو پھر تو نہیں کریں گے حدسی میں شمار، پھر تو ہم اس کو خبر واحد کا مصداق قرار نہیں دیں گے۔ اگر حصی ہونا کنفرم ہے تو بھی حصی میں جائے گا، حدسی ہونا کنفرم ہے تو پھر بالکل نہیں جائے گا۔ اگر مشتبہ ہے، شک پڑ جاتا ہے کہ یار اس کا اجماع جس کو یہ ہمیں نقل کر رہا ہے پتہ ہے کہ بندہ ثقہ ہے مگر یہ کہ اس کا اجماع حصی ہے یا حدسی ہے، تو اس کے حصی اور حدسی ہونے کا جو شک آپ کو پڑ رہا ہے کہتا ہے اس کی پڑتال نہیں کریں گے کیونکہ اقلاع پڑتال اس نقطے کی پڑتال نہیں کرتے۔ اچھا، یہ ہے جی پچھلے درس کا تسلسل۔ آج کا درس جو شروع ہونے لگا وہ یہاں سے شروع ہونے لگا ہے۔ مصنف کہتا ہے یہ جو تم نے کہا ہے کہ بھئی اگر آپ کو شک ہو جائے کہ یہ نقل ہونے والا اجماع حصی ہے یا حدسی ہے، یعنی ان طریق الحس ناقل نے لے کر آپ کو دیا ہے یا ان طریق الحدث اس نے اس کا علم حاصل کر کے آپ کو آگے نقل کیا ہے، اور آپ تفتیش کیے بغیر اس کی بات کو قبول کر لیتے ہیں، کہتے ہیں تفتیش نہ کرنے کی جو سیرت ہے اقلاع کی یہ مشروط ہے۔ توجہ فرمائیے، پڑتال نہ کرنے کی، تفتیش نہ کرنے کی جو ان کی سیرت ہے
یہ سیرت مشروط ہے۔ وہ کیا شرط ہے بھائی جس صورت میں یہ پڑتال کرتے ہیں اور اس کے بغیر پڑتال نہیں کرتے؟ کہتے ہیں یہ اس صورت میں پڑتال نہیں کرتے جس صورت میں حدثی ہونے کا کوئی قرینہ، کوئی امارت نہ ہو آپ کے پاس۔ اگر حدثی ہونے کا قرینہ آپ کو مل جاتا ہے تو ایسی صورت میں پھر وہ پڑتال کرتے ہیں کہ واقعی حدثی طریق سے لیا ہے اس نے یا کسی طریق سے لیا۔ اگر اس کے حدثی ہونے پر آپ کے پاس امارت نہیں ہے تو امارت نہ ہونے کی صورت میں پڑتال نہیں کرتے، تفتیش نہیں کرتے۔ اور اگر امارت متوفر ہو اقلاع کے پاس، حال سے، مقال سے، سیاق سے، سباق سے، کہیں سے کوئی قرینے کو امارت کہہ رہا ہے، وہ کوئی قرینہ مل جائے آپ کو اس کے حدثی ہونے پر، تو ایسی صورت میں وہ پڑتال کرتے ہیں۔ کیا پڑتال کرتے ہیں؟ کہ بھئی یہ خبر دے رہا ہے، خبر ٹھیک دے رہا ہے یا سنی سنائی دے رہا ہے۔ اس کو ہم سنی سنائی بولتے ہیں۔ صحیح۔ لہذا یہ جو سیرت بیان کی گئی ہے، ہاں ایک شرط یہ ہے کہ قرینہ اور امارت موجود ہو اس کے حدثی ہونے کا، تو ایسی صورت میں پھر پڑتال کریں گے۔ قرینہ نہ ہو، امارت نہ ہو اس کے حدثی ہونے پر تو پھر پڑتال نہیں کرتے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدثی میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز لزوم کی بنا پہ اس نے خبر کو نقل کیا ہے، ہو سکتا ہے اس لزوم کو سامع اس پہ ایمان نہ رکھتا ہو۔ مثلا خبر دینے والے نے آپ کو خبر دی ہے وجود نار کی، اور وجود نار کا علم اسے حاصل ہوا ہے، روڈ پہ گاڑی میں بیٹھ کے دیکھ رہا تھا، دھواں اٹھتا ہوا اس نے دیکھا کہ ہماری والی گلی سے، پچھلی والی گلی سے یا پچھلے والے فلاں ہمارے ہمسائے کے گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ تو آگے راستے میں دوست ملے، اس نے کہا یار وہ ہمارے محلے میں فلاں کے گھر جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے۔ تم کو کیسے پتہ؟ نہیں، میں دھواں اٹھتا دیکھ کے آیا۔ تو اب وہ جو خبر دے رہا ہے وہ اس بنا پہ دے رہا ہے کہ مخبر جو ہے دھوئیں میں اور وجود نار ان دونوں کے درمیان لزوم کا ایمان رکھتا ہے۔ اس لزوم والے ایمان کی بنا پہ اس نے پھر جو ہے وہ دھوئیں کی بنیاد پہ وجود نار کی آگے خبر دے دی ہے۔ ٹھیک، تو ہو سکتا ہے جس کے سامنے خبر دی جائے وہ اس لزوم کو تسلیم نہ کرتا ہو جس لزوم کے بنا پر یہ وجود نار کی خبر دے رہا ہے۔ یہ مثال ویسے اتھنٹک ہے کیونکہ اس میں لزوم پایا جاتا ہے، اقلاع اس کو قبول کرتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس لزوم کی بنا پہ اس نے خبر دیا ہے اس لزوم کو وہ نہ مانتا، تو اس لزوم پر بھی اگر امارت مل جائے سامع کو، حدثی ہونے پر امارت مل جائے یا اس لزوم پر امارت مل جائے جس لزوم کی بنیاد پہ اس نے دعویٰ کیا ہے مگر وہ اس لزوم کو تسلیم نہیں کرتا، تو ان دو صورتوں میں وہ اجماع جس کے حدثی اور حصی ہونے کے حوالے سے شک پڑ جائے پھر اقلاع اس کی پڑتال کرتے ہیں۔ لہذا وہ جو عدم تفتیش کی آپ نے سیرت نامی دلیل بیان کی ہے، وہ سیرت عدم تفتیش والی سیرت وہ مقید ہے ان دو صورتوں کے ساتھ۔ ان دو صورتوں میں تفتیش کریں گے، ان کے علاوہ تفتیش نہیں کریں گے۔ نعم، جی ہاں، لا یبعد، بعید نہیں ہے، ان یکونا بناؤہم، اقلاع کی جو سیرت پائی جاتی ہے، علی ذالک، عدم تفتیش پر، مخبر شخص سے کا ہو اور اس کی خبر کے بارے میں شک ہو جائے کہ یہ اس نے عن طریق الحس لے کر دی ہے یا عن طریق الحدث لے کر دی ہے، تو وہ اس کی خبر کی پڑتال نہیں کرتے، اس کے حصی اور حدثی ہونے کی پڑتال نہیں کرتے۔ ذالک کا اشارہ عدم تفتیش، اور عدم تفتیش کس چیز کی؟ حصی اور حدثی ہونے کی۔ حصی اور حدثی ہونے کی پڑتال نہیں کرتے۔ یہ پڑتال نہ کرنے کی ان کی جو سیرت ہے، یہ سیرت بعید نہیں ہے، پائی جاتی ہو فیما، اس مورد میں جس مورد میں لا یکون ہناک امارۃ علی الحدث،
हदस पर अमारत ना हो। हदस यानी वो जो खबर नकल की गई है अन तरीक़िल हदस लेकर नकल करने पर अमारत मौजूद ना हो तो वो पड़ताल हदसी होने की पड़ताल नहीं करती। औ अमारतुन अलल हदस औ अमारतुन अलल एतिकादिल मुलाजमत, उस मुलाजमत के एतिकाद पर अमारत ना हो। किस मुलाजमत के एतिकाद पर? फीमा, जो मुलाजमत पाई जाती है फीमा उस मोरद में, जिस मोरद में ला यरौना हुना का मुलाजमतुन, जिस मोरद में मुलाजमत के ना पाए जाने का वो उकला एतकाद रखते हैं, मुखबिर रखता है मगर ये उस मकाम पे मुलाजमत का एतकाद नहीं रखते। और अमारत मिल जाए उस मोरद में कि भाई वो उस मुलाजमत की बिना पे खबर दे रहा है जिस मुलाजमत को हम तस्लीम नहीं करते, इस मुलाजमत की अमारत मिल जाए तो भी वो पड़ताल करते हैं। अदम तफ्तीश की जो सीरत है यहाँ पर वो माची नहीं है। अच्छा जी, लिहाजा मुसन्निफ ने वो इजमा के जिसकी सूरत हाल मुश्तबे है हदसी और हिस्सी होने के हवाले से उसको डिवाइड कर दिया गया, दो हिस्सों में उसने बांट दिया। एक हिस्सा यह है कि अगर मनकूल इलाह शख्स के पास उसके हदसी होने पर या उस मुलाजमत के वजूद पर, जिस मुलाजमत के वजूद पर मुखबिर खबर दे रहा है मगर ये उसको तस्लीम नहीं करता, अमारत इसको मिल जाती है। अमारत यानी कोई करीना मिल जाता है जिससे इसे पता चल जाता है कि शायद ये हदसी है या शायद एक मुलाजमत है और मैं उसको नहीं मानता हूँ, जिस मुलाजमत की बिना पे ये नकल कर रहा है मैं उसको नहीं मानता, तो ऐसी सूरत में वो पड़ताल करेगा। वगरना अदम तफ्तीश की सीरत जो है वो साबित करेगी क्या कि ये मुश्तबे सूरत हाल वाला इजमा इसको हिस्से में ही दर्ज करना चाहिए। खल्लासना लेकिन अल इजमा आद अल मनकूला फी अल सुन्नतिल असहाब, तवज्जो फरमाइए। मुसन्निफ कहता है कि ये ऊपर जो हम तफसील दे रहे हैं कि इजमा हिस्सी, इजमा हदसी, और हिस्सी के अंदर फिर हमने वो 4 किस्में बनाई, दखूली, लुत्फ़ी इला आखिरही, फिर उन 4 किस्मों के आगे फिर हमने जो है वो खबर वाहिद के ज़ुमरे में दर्ज करने के लिए 3 अक़साम बनाई कि सबब मुसब्बब दोनों को नकल करे, फ़कत सबब को नकल करे, फ़कत मुसब्बब को इला आखिरी। ये सारी तफसील जो हम आपको दे रहे हैं, ये सारी तफसील जो है वो अकली तस्वीर की बिना पे तफसील दे रहे हैं। यानी अक्ल ने एक मबने का तस्वुर दिया है, उस मबने के तस्वुर को सामने रख के हमने अकली मवाज़ीन की रोशनी में फिर ये तफसील दी है कि अगर वो इजमा ऐसा है तो उसका ये हुक्म है इला आखिरही। ठीक है, अब हम बात करने लगे हैं खारिज में पाए जाने वाले इजमाआत की, जो खारिज में इस वक्त हमारे पास मौजूद और मुतवफ़िर इजमा हैं, जो मुतवफ़िर और इजमा जिनके बाकायदा उलमा ने दावा कर रखे हैं, रसाइल में, लुमा में, शराय में, लुमा में, इला आखिरी दीगर मकामात पर जिन इजमाआत को आप बाकायदा देख रहे हैं कि उलमा ने दावा कर रखा है और मुतवफ़िर हैं इस वक्त हमारी कुतुब में, हमारे आँखों के हाथों के दस्तरस में मौजूद है, इनको मैं नाम दे रहा हूँ खारिज में पाए जाने वाले इजमाआत का। तो जो है मुसन्निफ कहते हैं खारिज में पाए जाने वाले जो इजमाआत हैं, लुमा के हैं, शराय के हैं, इला आखिरी, कहता है गालिबान इनमें अक्सर इजमा वो हैं जिनको नाकिल ने नकल किया है अन तरीक़िल हदस औ अला इत्कादिल मुलाज़मत। तवज्जो है, या नाकिल जो है वो इस बिना पे नकल कर रहा है कि भाई उसने अन तरीक़िल हदस उस इजमा को लिया है। इजमा को अन तरीक़िल हदस लेने से क्या मतलब है, यानी उसने पड़ताल नहीं की हुई है, बस उसको कोई दलील, कोई करीना मिल गया जिस करीने से, जिस दलील से उसको इत्मीनान हो गया कि इस कौल पे उलमा का इत्तेफाक है, तो उसने इजमा का दावा कर दिया। दलील की बुनियाद पे दावा करना ये हदसी कहलाएगा ना, और खुद जो है पड़ताल करेगा तो ये हिस्सी कहलाएगा। ये इजमा जो पाए जाते हैं मुतवफ़िर है हमारे पास, अक्सर क्या हैं, वो अक्सर का लफ्ज़ बोल रहा है, कुल्ली का लफ्ज़ नहीं बोल रहा है। अक्सर क्या हैं जी, हदसी हैं, या उनमें से क्या हैं
नाकिल जो फकीह नकल कर रहा है या दावा कर रहा है इजमा का, वो इस बुनियाद पे दावा कर रहा है चूंकि वो अकीदा रखता है मुलाजमत के वजूद का, कि लज़ूम पाया जाता है उलमा के इत्तेफाक में और इमाम की राय में। वो इस अकीदे का कायल है। इस अकीदे की बिना पर जहाँ देखता है कि नहीं कुछ उलमा जो हैं उन्होंने जो है एक ही फतवा दे दिया है, तो वो दावा कर देता है कि इमाम अलैहिस्सलाम की राय भी यही है। क्यों भाई, क्यों दावा किया इमाम अलैहिस्सलाम की राय भी यही है जो फतवा जहीदास उलमा ने दिया है? इसलिए कि वो उलमा के इत्तेफाक में और इमाम की राय के दरमियान मुलाजमत के वजूद का अकीदा रखता है। तो जो है तो अक्सर इजमा जो हैं वो मबनी हैं या हदस पे या उस मुलाजमत के अकीदे पे। ठीक हो गई बात? अच्छा, मुसन्निफ कहता है जब अक्सर उलमा हमारे अक्सर इजमाआत खारिज में पाए जाने वाले या हदसी हैं या मुलाजमत के अकीदे की बुनियाद पे मुद्दई ने इनको नकल किया है, दावा किया है। इस बिना पे तवज्जो फरमाइए, कहते हैं ये अक्सरियत जो है ये करीना बनेगी, ये अक्सरियत करीना बनेगी। किस बात का करीना बनेगी? कहते वो इजमा जिसकी सूरत हाल मुश्तबे है कि ये हदसी है या हिस्सी है, उसका फैसला देने के लिए ये अमारत बनेगी। तो जो है अब अक्सर इजमा तुम्हारे हदसी हैं, कलील हैं जो हिस्सी हैं। तो अब एक इजमा जिसके बारे में शक पड़ जाए कि ये हिस्सी है या हदसी है, तो अक्सरियत जो है वो करीना बनेगी। इसको कहाँ दर्ज किया जाए? हदसी में। आसन तो ये अक्सरियत करीना बनेगी उस मुश्तबे इजमा के बारे में फैसला देने के लिए। अमारत बनेगी। अभी कबल कई लफ्ज़ अमारत उसने बोला है। अमारत बनेगी या नहीं बनेगी? अमारत बनेगी। तो किस बाब में दर्ज हो जाएगा? वो हदसी के बाब में दर्ज हो जाएगा। ठीक है। और आपने कहा है कि अदम तफ्तीश की सीरत पाई जाती है उस सूरत में जिस वक्त आपके पास उसके हदसी होने पर या उस मुलाजमत के अकीदे पर अमारत और करीना मुयस्सर ना हो, और आपको अमारत और करीना मिल गया है। जब करीना मिल गया है तो इसका मतलब यह है कि फिर मुश्तबे सूरत हाल रखने वाला इजमा, उसका फैसला हम सीरत उकला के जरिए नहीं देंगे, बल्कि उसका फैसला हम इस अमारत के जरिए, करीने के जरिए देंगे। और वो करीना और अमारत क्या है? ये इजमा की अक्सरियत है। इनकी अक्सरियत ही करीना बनेगी उसका फैसला देने के लिए कि इसको किधर दर्ज करना चाहिए, हिस्सी में या हदसी में। लाकिन कहाँ अल इजमाआत अल मनकूला फी अल सुन्नतिल असहाबे, वो इजमा जो असहाब यानी फुकहा की जबानों में नकल होके हम तक पहुंचे हैं। कहाँ नकल होके पहुंचे हैं? हम तक। शराय में देखें, इल्मा में देखें, इला आखिरी जो फुकहा की किताबों में है। गालिबान इन इजमाआत की अक्सरियत जो है वो मबनियातुन अला हदस नाकिले, नाकिल के हदस पर, और अला इतिकादिल मुलाजमत, या वो मुलाजमत का अकीदा रखता था। उसने देखा कि 4, 5, 10 उलमा का ये फतवा है, तो उसने जो है दावा कर दिया कि इमाम की राय भी यही है जो ये 10 उलमा ने फतवा दिया है। क्या आपके पास दलील है कि भी इमाम की राय भी यही है जो इन 10 उलमा ने फतवा दिया है? कहते दलील यह है कि चूंकि मैं अकीदा रखता हूँ उलमा की इत्तेफाक और इमाम की राय के दरमियान लज़ूम का, ये 5, 10 उलमा जब किसी पर इत्तेफाक कर लें तो समझो कि इमाम की राय भी। इस अकीदे की बुनियाद पे उसने इजमा का दावा किया हुआ। अच्छा, मुसन्निफ कहता है समझ आ गई? लकीन की समझ आ गई ना? तो लकीन की इस लकीन के बाद उसने किस चीज को प्रूफ किया है? अमारत के वजूद को प्रूफ किया है। यानी हमें अमारत मिल गई है। जब अमारत मिल गया तो इस अमारत के जरिए हम फैसला करेंगे किसका? उस मुश्तबे इजमा का। तो मुश्तबे इजमा का फैसला इस अमारत के जरिए होगा, ना कि जो उकला की सीरत है अदम तफ्तीश की उसके जरिए फैसला करेंगे, क्योंकि वो सीरत हमने मुकय्यद की हुई है इस अमारत के ना होने से। अमारत मिल गई है तो अब फैसला अमारत के जरिए होगा, सीरत के जरिए नहीं होगा। ठीक हो गई बात? अब नतीजा देता है मुसन्निफ, कहते हैं फिर नतीजा ये निकलेगा फला एतबार अलहा, तो वो इजमा जो मुश्तबे हैं, वो इजमाआत जिनकी सूरत हाल मुश्तबे है,
फला एतबार लहा, उनके लिए हुज्जत साबित नहीं है। हुज्जत साबित नहीं है कि क्या तर्जमा करेंगे? वो खबर वाहिद के जुमरे में उनके मुसादिक के दर्ज बाब में दर्ज नहीं है, क्योंकि उनकी हुज्जत जो आती है वो इधर मुस्ताक होने की वजह से आती है। हुज्जत की नफी करने का मतलब यह है कि हम उनके खबर वाहिद के मुसादिक में से होने का रद्द कर रहे हैं। मुतवज्जे हैं इसमें तरीका। फला एतबार अलहा यानी फला हुज्जत साबित अलहा, इन इजमाअत के लिए हुज्जत साबित नहीं है। कब तक साबित नहीं है? कहते हैं मालम यनकशिफ अन्ना नकल सबबे काना मुस्तानिदन इलल हिस्से, जब तक आपको इत्मीनान नहीं हो जाता, जब तक ये इंकशाफ नहीं हो जाता, नकल सबब, सबब से मुराद इजमा सबब होता है भाई, इमाम की राय को मुसब्बब कहते हैं। वो जो सबब है, सबब यानी वो इजमा जिसके जरिए इमाम अलैहिस्सलाम की राय को हमने कशफ किया है, वो उस सबब को नकल किया गया है। ये नकल करना सबब का काना मुस्तानिदन इलल हिस्से, जब तक उस इजमा के, उस सबब के जिसके जरिए आपने इमाम की राय को कशफ करना है, उस सबब और उस इजमा के हिस्से होने का इत्मीनान नहीं हो जाता, उस वक्त तक आप इसकी हुज्जत का फैसला नहीं देंगे। क्यों? इसलिए कि हमें अमारत मिल गई है जिसके जरिए उस मुश्तबे का हदसी होना साबित हो रहा है। और वो अमारत क्या है? खारिज में पाए जाने वाले इजमाआत की अक्सरियत का हदसी होना। अच्छा जी, यहाँ तक नुक्ता मुकम्मल हो गया है। किस इजमा के हवाले से? जिसकी सूरत हाल मुश्तबे है, वो इजमा जो हदसी है या हिस्सी है, सूरत हाल का पता नहीं है, तो उसके हवाले से उसने फैसला अब यहाँ तक दे दिया है। अमारत मिल जाती है तो फैसला अमारत की रोशनी में होगा, अमारत नहीं मिलती है फैसला सीरत की रोशनी में होगा। और हमें अमारत मिल गई है, जब मिल गई है तो अब फैसला हमेशा इस अमारत की रोशनी में करेंगे। क्या? कि जब तक उसके हिस्सी होने का इत्मीनान नहीं होता, उसको हम हदसी के ही बाब में दर्ज करेंगे। खलास। अच्छा जी, फला बुद्दा फिल इजमाअत अल मनकूला। अब जी उससे मरबूत एक दूसरा नुक्ता बयान करता है। ये दूसरा नुक्ता उसने निकाला है लकिन अल इजमाअत अल मनकूला वाली इबारत से। भाई आपने अभी जो है वो दावा किया है कि खारिज में पाए जाने वाले अक्सर इजमाआत जो हैं वो क्या हैं? हदसी है। खारिज में पाए जाने वाले अक्सर इजमाआत तुम्हारे हदसी हैं, तो फिर इन इजमाआत के बारे में अब क्या करना चाहिए? मुसन्निफ कहता है इन इजमाआत के बारे में हमारे पास रिपेयरिंग के दो तरीके हैं। खारिज में मुतवफ़िर बाजार के अंदर दस्तयाब एवल जितनी इजमात हैं उनमें अक्सरियत किसकी है? हदसी की है। तो अब ये हदसी इजमात, हदसी को तो हम हुज्जत नहीं मान सकते ना, क्योंकि हुज्जत मानते हैं खबर वाहिद का मिस्दाक होने की बिना पे, और हदसी इजमा खबर वाहिद का मिस्दाक नहीं है, क्योंकि खबर वाहिद जो है वो तरीक हिस्सी है, ये तरीक हदसी है। हदसी तरीक हिस्सी तरीक का मिस्दाक नहीं बनेगा, तो लिहाजा ये मिस्दाक बनने की वजह से हुज्जत होते हैं। मिस्दाक नहीं है तो फिर हुज्जत नहीं है। जब ये अक्सर हैं ही हदसी, तो अब इनके बारे में आप कुछ रिपेयरिंग का हमें कोई हुनर दे सकते हैं। मुसन्निफ कहता है रिपेयरिंग के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका यह है कि इन हदसी इजमाआत की आप खुद से पड़ताल शुरू करें। खुद से पड़ताल करने के बाद, तवज्जो फरमाइए, खुद से पड़ताल करने के बाद नतीजा दो हाल से खाली नहीं। या तो आपको ये सबब ताम नजर आएंगे इमाम की राय को कशफ करने का, या सबब ताम नजर नहीं आएंगे। अगर सबब ताम नजर आ जाएं तो उस वक्त आपके लिए ये तहवील हो के इजमाए मुहस्सल का दर्जा पा लेंगे, क्योंकि आपने खुद इनकी आज से नौ खुद पड़ताल की है। ठीक है जी। और अगर पड़ताल करने के बाद, असर नौ पड़ताल करने के बाद ये इमाम अलैहिस्सलाम की राय तक पहुंचाने के लिए, उसको कश्फ करने के लिए सबब ताम नहीं आए, तो फिर इनको गोया ये क्या हो जाएंगे? इल्लत नाक़िसा हो जाएंगे। और इल्लत नाक़िसा जो होता है उसको ताम बनाने के लिए आपको फिर उन अमूर की एहतियाज होती है जो आके इसको ताम बनाएं। ऐसे करते हो या नहीं करते हो यार? ध्यान दो ना इन बातों पे, जिसम तो गुजर चुका है, नींद पूरी नहीं हुई समझा। अच्छा, अगर ये सबब ताम साबित हो जाते हैं पड़ताल के बाद, तो फाबिहा इनको इजमाए मुहस्सल का दर्जा मिल जाएगा। ठीक है।
सबब ताम नहीं है, तो सबब ताम ना, जो सबब ताम ना हो उसे हम इस्तिलाह में इल्लत नाक़िसा कहते हैं। और इल्लत नाक़िसा को कामिल बनाने के लिए उन उमूर को फिर तौफीर किया जाता है, दस्तयाब किया जाता है, जो आके उसको क्या बनाते हैं, इल्लत तामा बनाते हैं। तो अगर ये इमाम अलैहिस्सलाम की राय तक पहुंचने का सबब ताम नहीं बन रहा, यानी सबब नाक़िसा इल्लत नाक़िसा बन रहा है, तो फिर हम दीगर उमूर का सहारा लेंगे, वो आके इसके साथ जम करेंगे, ताकि फिर ये उनके जम करने के बाद इमाम अलैहिस्सलाम की राय तक हमको पहुंचा दे। भाई वो दीगर उमूर क्या हैं जिनको आप इस इजमा के साथ जम करेंगे तो इसका नक्स दूर हो जाएगा, जो सबब नाक़िसा था ये सबब तामा बन जाएगा। कहते हैं वो दीगर उलमा जो हैं वो शोहरत हो सकती है, अमारात हो सकती हैं, ऐसी मुरसला रिवायात हो सकती हैं जिनको बतौर तायीद तो उलमा कबूल करते हैं, बतौर दलील कबूल नहीं करते। तायीद और दलील में फ़र्क है भाई। दलील लेने के लिए ज़रूरी है कि सनदन व दलालतन वो हदीस ताम होनी चाहिए, और अगर वो दलालतन व सनदन किसी लिहाज से नक्स है तो उसको दलील नहीं लेते, फिर किसी और मौक़िफ़ के लिए उसको बतौर तायीद वो ले लेते हैं। मसलन एक मौक़िफ़ किसी और दलील से उन्होंने साबित किया, जब किसी और दलील से उसको साबित किया तो ये बतौर तायीद वहाँ आके काम दे जाती है। तो कहते हैं वो मुरसलात और वो शोहरत रखने वाली अहकाम या शोहरत रखने वाले फतावा, जिसको आप शोहरत कहते हैं। तो अब शोहरत का लफ्ज़ जो है फतावा या शोहरत रिवायत में शोहरत है, फतवे में शोहरत है, तो शोहरत जो है या मुरसलात ये दीगर चीज़ें, इनको उसने जामे नाम दिया है अमारात का। अमारत यानी चूँकि वो भी ज़न्नी तौर पे फ़ायदा दे रही हैं, तो उनको हम जम करेंगे इस इजमा के साथ, ताकि जो है वो जम करने के बाद इमाम अलैहिस्सलाम की राय को हम इनके ज़रिए कशफ कर सकें। और अगर जम करने के बाद भी आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो फिर उस इजमा को कहता है क्रॉस करो, साइड पर रखो। बस रफेरे की हमारे पास यही दो ही उम्र हैं, एक खुद पड़ताल करो, पड़ताल के बाद वो इजमा मुरसल का दर्जा पा जाए, और अगर वो इस सबब ताम नहीं बन रहा है तो फिर ज़मीमे की एहतियाज होगी ताकि वो सबब ताम बन सके। फला बुद्दा फिर इजमाआत अल मनकूलाते, तो ये इजमा जो मनकूल हो के आए हैं जिनका अक्सरियत हिस्सा क्या है, हस्सी है, और नकल हो के आए हैं बे अल्फाज़हा अल मुख्तलिफा, मुख्तलिफ अल्फाज के साथ नकला हो के हैं। मुख्तलिफ अल्फाज से क्या मुराद है, यानी कुछ अल्फाज वो हैं जो ज़हूर रखते हैं उस सबब के नकल में, कुछ इजमा हैं जो सराहतन रखते हैं उस सबब के नकल में, यानी उनके अल्फाज की इबारत मुख्तलिफ हैं। अजमाल असहाब, अजमा असहाबुना, अजमा उलमा और इमामिया, इत्तफाक उलमा और इमामिया, मुख्तलिफ ताबीरात हैं। ला खिलाफ फी है, ला खिलाफ फीहा का इशारा भी इजमा की तरफ ही होता है, इसमें इख्तिलाफ नहीं है। मतलब क्या है, इजमा कहता है ला बुदा, जरूरी है, क्या जरूरी है भी, मिन इस्तिज़हार मिकदार दलालत अल्फाज़हा, उन नकल करने वाले अल्फाज जो हैं, इजमाआत को नकल करने वाले जो अल्फाज हैं, उन अल्फाज की दलालत की मिकदार का इस्तिज़हार किया जाए, यानी उनकी दलालत की मिकदार की पड़ताल की जाए कि कितनी फीसद, मिकदार का तर्जमा फीसद से करूंगा, कि वो अल्फाज कितनी फीसद दलालत रखते हैं इमाम अलैहिस्सलाम की राय को कशफ करने के लिए। इस्तिज़हार मिकदार, मिकदार का इस्तिज़हार यानी कितनी फीसद दलालत रखते हैं इमाम अलैहिस्सलाम की राय तक पहुंचाने की। अच्छा, वलाओ बे मुलाहज़ाते हालिन नाकिले, अब चाहे आपने उस फीसद दलालत की फीसद को दलालत की मिकदार को मुअय्यन करने के लिए नाकिल के हाल का भी आप रियायत कर सकते हैं। मुलाहज़त हाल नाकिल, नाकिल के हाल को भी मलहूज़ रखा जाता है, सिका है सिका नहीं है, कैसा है कैसा नहीं है, मुस्तनद है मुस्तनद नहीं है, हर बंदे की बात सुन के आगे नकल कर देता है या छानबीन के आगे नकल कर देता है। जैसे कि आजकल व्हाट्सएप का जो है वो दौर चल रहा है, तो आपको किसी ने भी बात जो है वो सेंड किया तो फौरन आप दूसरों को जो है वो फॉरवर्ड कर देते हैं, आगे से रिएक्शन आता है यार क्या मुझको फॉरवर्ड किया है। कुछ लोग ऐसे भी होते, और कोई लोग ऐसे हैं कि भाई हर बात को आगे फॉरवर्ड नहीं करते हैं, जिस बात पे मुतमईन हूँ दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं, वरना वहीं पे उसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये नाकिल की हाल है, फॉरवर्ड करने वाले की नाकिल फॉरवर्ड होता है, उसने फॉरवर्ड करना होता है। तो उसकी अपनी सूरत हाल को भी देखो, वखसूस मौज़े और नाकल,
मौज़ू और नकल से मुराद यह है कि जिस चीज को मौजू और नकल कह रहे हैं, जिस मौजू को नकल कर रहा है खुद उस मौजू को देख लें कि वो किस किस्म का मौजू है भाई। सही। तो इन सारी चीजों को मलहूज रखने के बाद आप क्या करेंगे, दलालत की मिकदार का तयन करेंगे भी कितनी मिकदार दलालत है इमाम अलैहिस्सलाम की राय तक पहुंचने में। अच्छा, फयूखाज़ो बिज़ाकल मिकदार है, तो अब लिया जाएगा उस मिकदार को, ठीक, वयुआमल माअहू, उस मिकदार के साथ मुआमला किया जाएगा, कअन्नहु अल मुहस्सल, क्या मुआमला किया जाएगा, गोया कि यही इजमा जो है अब क्या बन गया है, इजमा मुहस्सल। ये इशारा है किस नुक्ते की तरफ, फ़इन काना बेमिकदार तमाम सबब, अगर वो मिकदार तमाम सबब को पहुंचती है, वो मिकदार पहुंचती है किसको, तमाम सबब। तमाम सबब से क्या मुराद है, यानी इमाम अलैहिस्सलाम की राय तक पहुंचाने के लिए वो दलालत की मिकदार सबब ताम बन रही है। ये इशारा है किस रिपेयरिंग की तरफ, आप इजमा की खुद पड़ताल करें, कराइन से, उस नाकिल के हालात से, उस मौजू के हालात से, दीगर जिहाद से पड़ताल करें। पड़ताल करने के बाद उस इजमा की उन अल्फाज की दलालत को महरूज रखें, दलालत की मिकदार मुयन करें कि भाई वो दलालत जो है मियां बिलमियां इमाम की राय तक पहुंचा रही है, नहीं पहुंचा रही है। ये गोया कि आप खुद पड़ताल कर रहे हैं उस इजमाए हदसी की अपने तौर पे। मैंने इसका नाम दिया है कि अपने तौर पे आज से नौ पड़ताल, क्योंकि मुसन्निफ के अंदर ये लफ्ज़ नहीं है, मुसन्निफ की इबारत है, मफहूम यही बनता है। व इल्ला से क्या मुराद है, और अगर तमाम सबब नहीं बन, यानी दलालत की मिकदार इस काबिल नहीं है कि वो सबब ताम बने इमाम अलैहिस्सलाम की राय तक पहुंचने का, तो कहते हैं फला युजदी, तो फिर ये दलालत की मिकदार या फिर ये आज से नौ पड़ताल ये फायदा नहीं देगी, मालम यजुम इलाहे, जब तक आप इसकी दलालत की मिकदार के साथ जम नहीं कर देते हो, माँ एक वो चीज बेही जिसके जरिए तम इसका सबब होना ताम हो जाता है। दरमियान में कुछ लफ्ज छोड़ दिए हैं मैंने, ठीक जमा यजुमों का फाइल डायरेक्ट लेके आया हूँ, ठीक है ना। जब तक आप जम नहीं करते इलाहे इस मिकदार के साथ, क्या मिकदार तक जम नहीं करते, माँ वो चीज बेही जिस चीज के जरिए तम इसका सबब होना ताम हो जाए। ये इशारा है किस रिपेयरिंग की तरफ, वो जो दूसरी वाली हमने बयान की थी कि अगर इसकी दलालत की मिकदार सबब ताम नहीं है, सबब नाकिस है, तो फिर आप ज़मीमे के मोहताज हैं, कुछ उमूर दीगर वो लेके आए जो बतौर तायीद इसके साथ मिलाएंगे, तो फिर इसके अंदर जो है वो सबबियत ताम हो जाएगी। अब आ जाओ वो क्या है भी, मिम्मा हस्सलहू, वो उमूर जो इसको क्या करें, इजमा मुहस्सल बना दें। मिम्मा हस्सलहू का क्या मतलब है, यानी वो उमूर जम करें जो उमूर जम करने के बाद इसको क्या बना दें, इजमा मुहस्सल बना दें। और नोकेला लहू, या वो उमूर, ये हस्सला का और नोकेला का अर्थ हस्सला पर है, यानी मिम्मा हस्सलहू और मिम्मा नोकेला लहू, या वो उमूर जो है नोकेला लहू जो इस शख्स के लिए नकल किए गए हैं। भाई कौन से उमूर इस शख्स के लिए नकल किए गए हैं ताकि बतौर ज़मीमा वो इसके साथ मिकदार दलालत के साथ जम करे। अब मिन बयान है, कहते हैं मिन साइल अकवाल, दीगर उलमा के अकवाल ले ले, साइल अमारात दीगर अमारात ले ले। ये इशारा है अकवाल से मुराद फतवा उलमा का, शोहरत फतावा, और अमारात से मुराद मुरसलात हैं दीगर जो इस इजमा के मफाद के लिए मुआफ़क़त रखती हैं। फाफाम के जरिए कहना ये चाहता है कि जो दूसरा तरीका है ना रिपेयरिंग का, जिसमें आप ज़मीमे के बाद जो है उसकी सबबियत को ताम करते हैं, उस वक़्त उस इजमा को आप इजमा काशिफ अन राय इमाम नहीं कहेंगे। क्यों? इसलिए कि इजमा काशिफ अन राय इमाम तो होता है वो जो ज़मीमे के बगैर खुद कशफ करे। अब ज़मीमा आ गया तो ज़मीमे ने मिल के ये आगे इमाम की राय तक पहुँचा रहा है, तो ये उस काशिफ का जुज़ है, बिना से ही खुद काशिफ नहीं है। क्योंकि इमाम की राय जो है कशफ हुई है, लेकिन कुछ ज़मीमा जो है वो भी कशफ करने में हमें ज़मीमे ने भी फायदा मुदाखलत की है, उसका भी हिस्सा अमल दखल है राय को कशफ करने में। जब उसका भी हिस्सा आ गया तो इजमा जो है वो बिना से ही काशिफ नहीं रहा। अच्छा जी, ये हो गया जी वो नुक्ता जो हमने उससे निकाला था। जैसे कहते हैं कि ये बात ज़हन में मुझे आ गई है तो चलो ये भी कहता चलो, वो हो गई।
मुसन्निफ कहता है फ़तलख़्ख़स बिमा ज़करना, ज़हमत हमने आपको बहुत दे ली है, उसका खुलासा हो जाए। खुलासा कुछ यूं है, मुसन्निफ कहता है भाई देखें, इजमा के अंदर हम दो सूरतें बना रहे हैं। एक बार इजमा के अंदर जो है हम देख रहे हैं राय और इमाम की नकल को, कि ये इजमा जो है इमाम अलैहिस्सलाम की राय को नकल हिकायत कर रहा है, इमाम अलैहिस्सलाम की राय को हिकायत कर रहा है। एक बार हम इसकी ये जिहाद देखेंगे। दूसरी बार हम इसकी जिहाद देखेंगे कौन सी, कि खुद ये इजमा जो है इसकी अपनी नकल को देखेंगे। इसकी अपनी नकल वाली बात बाद में आएगी। जो पहले जिहाद है कौन सी, इमाम अलैहिस्सलाम की राय से ये इजमा हिकायत करता है। इस जिहाद से इजमा को मुसन्निफ कहता है कि जब खबर वाहिद के तरीक पर इस इजमा को नकल करें तो नकल करने की सूरत में आपने सूरतें बनाई हैं तीन, सबब मुसब्बब दोनों को नकल करें, फ़कत सबब को, फ़कत मुसब्बब। तीन में से दो को हमने खबर वाहिद के मसादिक में दर्ज किया है, तीसरी को दर्ज नहीं किया है। ठीक है। अच्छा, अब टोटली तौर पे अगर देखा जाए तो उनमें से एक इजमा दखूली जो है, तो फरमाइए, इजमा दखूली जो है वो इमाम अलैहिस्सलाम की राय के लिए हिकायत करता है दलालत तज़म्मुनी के जरिए। भाई वो कैसे? कहते हैं वो इसलिए कि इजमाए दखूली में मसलन 10 कौल हैं तो उनमें से एक कौल इमाम का होता है, ठीक, और इमाम अलैहिस्सलाम का कौल जो है फिर 10 के ज़िम्र में आएगा जी। जब 10 के ज़िम्र में आएगा तो अब इमाम अलैहिस्सलाम की राय जब उस इजमा के जरिए नकल होगी तो वो मदलूल तज़म्मुनी बनेगी। सही। सारे उलमा की राय का मजमुआ मदलूल मुताबिकी, सारे उलमा की राय में से एक राय इमाम की तो वो उस मजमुए का एक जुज़ बनेगी, लिहाजा मदलूल तज़म्मुनी हो जाएगी। सही। दखूली के अलावा तशर्रुफी के उसने गिना नहीं है क्योंकि इब्तिदा में उसने जो है अलग कर दिया था। जी। दखूली के बाद बाकी बात गया आपके पास दो, लुत्फी और हदसी। कहता है ये इमाम अलैहिस्सलाम की राय को हिकायत करते हैं दलालत इल्तिजामी के जरिए। ये इमाम अलैहिस्सलाम की राय को हिकायत करते हैं दलालत इल्तिजामी के जरिए, क्योंकि आपने इजमा के दरमियान और इमाम अलैहिस्सलाम की राय के दरमियान एक लज़ूम का दावा किया है। ठीक, अच्छा, जब लज़ूम की बिना पर जो इमाम अलैहिस्सलाम की राय को ये इजमा हिकायत करता है तो फिर इमाम अलैहिस्सलाम की राय क्या बनेगी इस इजमा की, मदलूल इल्तिजामी। कहते जब मदलूल इल्तिजामी बनेगी तो फिर ये इजमा खबर वाहिद में दर्ज होगा। इस सूरत में जब सामने वाला शख्स भी इस लज़ूम का कायल हो, लज़ूम का कायल नहीं है तो ना कायल होने की सूरत में ये इजमा इमाम अलैहिस्सलाम की राय के लिए काशिफ नहीं बनेगा। जब काशिफ नहीं बनेगा तो फिर ये खबर वाहिद में दर्ज नहीं होगा। ये खुलासा है तुम्हारी कलाम। तलखस बिमा ज़करना, मा ज़करना का खुलासा ये बनता है कि अल इजमा अल मनकूला बिखबर अल वाहिद, वो इजमा जिसको नकल किया गया है खबर वाहिद के साथ, खबर वाहिद के तरीके पर, मिन जिहत हिकायत ही राय इमाम, इस जिहत से अगर देखा जाए कि वो इमाम अलैहिस्सलाम की राय से हिकायत करता है, इस जिहत पर जब देखेंगे तो फिर ये इजमा जो है इमाम अलैहिस्सलाम की राय के लिए नाकिल बनेगा बिल तज़म्मुन अविल इल्तिज़ाम। ठीक, अन्ना की खबर आगे आ रही है, मिन जिहत हिकायत ही, बिल तज़म्मुन और इल्तिज़ाम का ताल्लुक लफ्ज़ हिकायत के साथ है। इस जिहत से देखा जाए कि ये इमाम की राय की हिकायत करता है बिल तज़म्मुन तज़म्मुनी दलालत के साथ, अविल इल्तिज़ाम या इमाम अलैहिस्सलाम की राय की हिकायत करता है दलालत इल्तिज़ामी के साथ। इस हिकायत वाली जिहत से देखा जाए तो ये इजमा मनकूल का खबर वाहिद, खबर वाहिद की मानद होता है फिल एतबार हुज्जत होने में। का खबर वाहिद खबर हो गई अन्ना की। अच्छा, अब आगे कहता है इज़ा काना मन नो के ला है, लेकिन उस वक़्त ये अब इज़ा काना वाली इबारत जो है इसका ताल्लुक लफ्ज़ इल्तिज़ाम के साथ है।
तज़म्मुन के साथ नहीं है। इज़ा काना मन नोकेला इलाहे, जब वो शख्स जिसके सामने ये इजमा नकल किया गया है, मिम्मन उनमें से हो, यरल मुलाजमता बाना रायही व मानो केला इलाहे, जब वो भी मुलाजमत की राय रखता हो। किसके माबैन मुलाजमत की राय रखता हो? इमाम अलैहिस्सलाम की राय और वमा उसके दरमियान जो उसके सामने कौल या इजमा नकल किया गया है। तो उस वक़्त अच्छा आगे लफ्ज़ बोलता है वमा नाकल हो, यानी बैन राय ही और बैन नकल ही से मुराद इजमा है जिसको उसने नकल किया। मिनल अकवाल जो है बयान कर रहा है माँ को। बिना हवेल जुमलाते वाली इजमाल, जुमला और इजमाल जो है इधर सुन ले। इजमा जो होता है ना, ये उलमा के अकवाल को नकल करता है इजमाला। मसलन जब आप कहते हैं ना अजमा उलमा उल इमामिया थे, उलमा इमामिया का इस बात पे इजमा है। इस इबारत का मतलब यह है कि आपने उन उलमा के अकवाल को इजमालन नकल किया है जो ये फतवा रखते हैं। ठीक है ना। इजमाल मद्दे मुकाबले किसका होता है? तफसील का। अगर आप फर्दन मसलन 10 लोग हैं, फर्दन 10 के अकवाल को नकल करोगे तो ये नकल अकवाल तफसीलन कहलाएगा। और अगर फर्दन नहीं नकल करते हो, सिर्फ लफ्ज़ इजमा बोल देते हो, अजमा उलमा उल इमामिया थे, तो लफ्ज़ इजमा जब बोलेंगे तो इजमा के जरिए भी आप उनके अकवाल को ही नकल कर रहे हो, मगर इजमालन, क्योंकि फर्दन आपने नकल नहीं किया है। तो इसलिए उसने लफ्ज़ बिल जुमला बोला है। कहता है जब वो भी मुलाजमत की राय रखता हो, मुलाजमत का अकीदा रखता हो, किसके माबैन? इमाम अलैहिस्सलाम की राय के माबैन, और उस इजमा के माबैन जो अला नहविल इजमा, उन अकवाल के माबैन, इजमा न कहो, उन अकवाल के माबैन जिसको अला नहविल इजमा नकल किया गया है, नहविल इजमाल नकल किया गया है। नकल किया गया है या नकल कर रहा है? ना किसी ने इसके सामने नकल किया है, क्योंकि ये वो शख्स है ना जो मनकूल इलाही है। ये शख्स जो है उस इजमा और इमाम की राय के दरमियान मुलाजमत का अकीदा रखता है। अब लफ्ज़ इजमा इसने नहीं बोला, इसने लफ्ज़ अकवाल बोला है। उन अकवाल के माबैन जिन अकवाल को इजमालन इसके सामने नकल किया गया है, तो वो अकवाल जो इजमालन इसके सामने नकल किया गया है उससे मुराद इजमा है, क्योंकि अकवाल को इजमालन नकल करने का दूसरा नाम इजमा है। तो लफ्ज़ इजमा यहाँ बोलने के बजाय उसने क्या बोला है? वमा नाकलहु मिनल अकवाल, वमा नाकलहु मिनल अकवाल बिल जुमला। इस इबारत का आसान तर्जुमा या मुख्तसर शार्ट क्या बनता है? इजमा, क्योंकि इजमा जो है वो उलमा के अकवाल की नकल बिल इजमाल है। खलस ना। अच्छा, नंबर 1, अगर वो मुलाजमत की राय रखता है, कौन शख्स? जिसके सामने नकल किया गया है, तो उस सूरत में दलालत इल्तिजामी के जरिए वो हिकायत करेगा। ठीक। वातअम्मुहु, और उस इजमा को शामिल होंगी अदिल्ला तो एतबार ही की ज़मीर जाएगी खबर वाहिद की तरफ। खबर वाहिद की हुज्जियत की जो अदिल्ला हैं वो अदिल्ला इस इजमा को शामिल होंगी। यानी ये लफ्ज़ इज़ा के सारे मशरूत हैं, इज़ा शर्त है, ये सारी उसी की मशरूत हैं। वो इमाम अलैहिस्सलाम की राय को हिकायत करेगा अगर वो मुलाजमत की राय रखता है, और खबर वाहिद की हुज्जत को प्रूफ करने वाली अदिल्ला इसको शामिल होंगी अगर वो मुलाजमत की राय रखता है। वह यान कासिम बेन के सामने ही ये वाला इजमा खबर वाहिद वाली अक़साम के मुताबिक तकसीम होगा। खबर वाहिद के अंदर अक़साम है भाई, हसन है, सही है, मुरसल है, मुस्नद है, इला आखिरी 5, 6, 7 किस्में बनेगी खबर वाहिद की। वो जितनी खबर वाहिद की अक़साम बनेगी ये भी उसी की अक़साम के मुताबिक तकसीम हो जाएगा अगर वो मुलाजमत का अकीदा लफ्ज़ अगर साथ चलेगा। वयुशारिकुहु, और ये इजमा उस खबर वाहिद का शरीक बनेगा फी अहकाम में ही, खबर वाहिद के अहकाम में। जो अहकाम खबर वाहिद के ऊपर लगते हैं वो खबर वाहिद की बहस आगे आ रही है तो वह सारी तफसील आ जाएगी कि वो अगर खबर वाहिद सही है तो उस वक़्त वो मुनज्जिज़ होती है, ख़ता करती है तो वो उस वक़्त वो मुअज़्ज़िर होती है। तारुज़ अदिल्ला कर जाए, दो खबर वाहिद आपस में तारुज़ कर जाएँ तो फिर उसका क्या हुक्म है। वो सारे अहकाम में ये इजमा भी उसका क्या बनेगा? शरीक बनेगा अगर आप लज़ूम के कायल हो जाते हैं। वइल्ला, और अगर आप लज़ूम के कायल नहीं हैं, यानी वो शख्स जो जिसके सामने इजमा नकल किया गया है वो जो है उस लज़ूम को तस्लीम नहीं करता है, फिर लाम यकुन मिसलहु फिल एतबार, तो फिर ये इजमा
منقول اس خبر واحد کی مثل نہیں بنے گا. فعل اعتبار حجت ہونے میں کیسے جہاد سے اس کی مانند نہیں بنے گا؟ من جہت حکایت رائے الامام، امام علیہ السلام کی رائے کی حکایت کرنے والی جہت میں یہ اجماع خبر واحد کے مانند نہیں رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.